making of a fraternity of people is the social capital on which a nation is formed. When I see the building of our nation in this perspective, then I find that we perhaps as a nation do not come good on this particular definition, because we are a society which is divided on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of so many fragmentation, and merit of each individual living in this particular society is tested on those narrow parameters. So friends, I'll not deliberate long to put forth my own views. दिल्ली विश्वविद्यालय का विभाग बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और हमने पिछली बार दिल्ली सरकार के लिए जो प्लान स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स, उसका एक पूरा राज्यव्यापी मूल्यांकन किया था, और उसकी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा तो लागू हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसकी बाकी रिपोर्ट का भी हिस्सा लागू हो जाए। Dalits, it is for the whole country because it helps Dalits to come into the economic mainstream of the country. Till now, Dalits have not had this opportunity because we know, I mean all of us know very clearly, वो सिर्फ social exclusion नहीं है, social exclusion के साथ economic exclusion भी ज़्यादा। So recognizing this, they have in 1979 under Srimati Indira Gandhi's leadership, a change in how the Dalit women, children, youth and men will be looked at, because till then we are only looked at as laborers. We are only looked at as people who are outside the community. But very clear, it's not limited to only social untouchability. It has come into the economic paradigm. So therefore, we need to have special component plan in all sectors, that is in industry, commerce, in higher education, in information technology. There are 83 ministries and departments. All these ministries and departments we have to take inside and ensure that Dalits are given an inclusive thing in all this. ये budget inclusive budget है, आम आदमी को budget है. So ये inclusion, he said that we will have, but then we see that in the entire 2007-2008, it is only 8.1%, 6.4% in 9 and 10, and today, this year, which was presented I think in March March 9th, we had only 7.5% in the union budget. Same untouchability mentality in the planners. There they feel दलितों को थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन दे दो, थोड़ा लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दे दो, छोटा मोटा वो बिजनेस के दे दो, वो दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में क्यों दलित उधर रहा है। 25,498 crores, they have given us only 45% of what we should get. What is the problem in giving in youth and sports? हमारा लोग अच्छी तरह से got a good physique, because they have not included Dalits, sir. Till now, India has no gold medal. तो संविधान में व्यवस्था है 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% अनुसूचित जाति के लिए, आप पहले उनके लिए आरक्षण इसमें फिक्स कीजिए। क्यों नहीं कोई वकील बढ़ करके आकर के निकल करके आया था, या आज क्यों नहीं कोई वकील निकल करके कोर्ट में इस मैटर को लेके जा रहा है कि गरीबों के लिए मसला आपने दे दिया 15-20%, आज आप जो संविधान में व्यवस्था है 15% और 7.5% की, उसके लिए क्यों नहीं आप प्रावधान रख रहे हैं। इस चीज की आवश्यकता थी। बजट कोई कौम के नाम पर नहीं बढ़ता। जिस अस्पताल में ब्राह्मण का भाई जाता है या ब्राह्मण जाता है, उसमें दलित को कोई नहीं रोक रहा। जिस स्कूल में किसी और बिरादरी का आदमी जाता है, दलित को वहां कोई नहीं रोक रहा। लेकिन कुछ अधिकार पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें जागृत होकर के समाज के उस वर्ग को, उस घर तक हमें जाना पड़ेगा जो पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, वो समाज जिसमें शिक्षा, जिसमें धन, जिसमें अपना आत्मसम्मान प्राप्त करने के सब रस्तों को बंद कर दिया हो, तो उसमें वो व्यक्ति कैसे लड़ेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। ये एक अपने आप में ही विषय है जिस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। सफाई कर्मचारी का निजीकरण, चपरासी का, चौकीदार का, पटवारी का,
कंडक्टर का, ड्राइवर का, सिपाही का, टीचर का, सबका निजीकरण किया, पोस्टें खत्म की और दलित एक्ट खत्म किया, 20 सूत्री कार्यक्रम बैन किया और पेट्रोलियम में सारी रिजर्वेशन खत्म की, गैस में खत्म की, ट्रांसपोर्ट में खत्म की, पशुपालन में खत्म की। आज चुप बैठे रहे। 5 लाख पोस्ट प्लस 9 लाख 14 लाख, अरे ये सारे एक्ट खत्म। फिर कास्ट सर्टिफिकेट को रिस्टोर कराया। यह जो है हम कैसे पैसा कैलकुलेट किए हैं, इसके लिए एक नियम है अकाउंटिंग का कि 7898 माइनर हेड कोड है, वो जो होना चाहिए बजट में, और उसमें जितना पैसा है वो शेड्यूल कास्ट के नाम से है। एक जो विधानसभा में जो पास होता है वो कानून हो जाता है, बिल, और उस बिल में बात कुछ और है और जो दूसरा डिपार्टमेंट वो कर रहा है कि बात दूसरी बोल रहा है, वो ज़्यादा बोल रहा है। तो अगर इन दोनों में कंट्राडिक्शन है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स को माना जाएगा कि ये सही है? लेकिन आप यहाँ जो हाउस बैठा है उसके सामने ये सवाल रखा गया है कि इस पर हम कैसे, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, जैसे जय किशन जी, हम लड़ाई में अपना समय भी और अपनी एनर्जी भी नष्ट नहीं करना चाहते, और हम जो है हम नक्सलाइट नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं अपने समाज के, और हम कानून और व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, और इन सारे विश्वास रखने का हमारा क्या हो? आपका इस बजट में राइट फ्रॉम 17 सितंबर 2009 आई हैव बीन राइटिंग, मैंने बोला 24 सितंबर को हमारा संविधान बनाएंगे, और आई हैव रिटन टू ऑल कंसर्न कि हमारा संविधान फेल हो गया जहां तक SC ST के प्रावधान का मतलब, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे सर्विस का रिजर्वेशन हो, या चाहे आर्टिकल 46 में जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, लीव दैट असाइड। जब हमें 27 जून को ये बोला गया कि हम सोशियो इकोनॉमिक गैप ब्रिज करना चाहते हैं 10 साल में, तो उसके क्या, यूपीए गवर्नमेंट 1 थी, यूपीए 2 हो गई। यूपीए में आपके उस समय 28 MP थे, इस साल 50 MP है। वेयर आर दोज MPs, वेयर आर दोज MLAs जिनको कि हमने आर्टिकल 330 में और 332 में आगे लेके आया, और हमारी व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ दे कैन एड्रेस आवर इश्यू सेपरेटली, they are unfit. They should resign. I am going to file a case in the Supreme Court. Why they should be given this reservation and not address our issues? जहाँ तक इस बजट की बात है, आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं संविधान दिवस को सबको, सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमिश्नर को, प्लानिंग कमीशन को, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबको लेटर में हुए, संविधान फेल हो रहा है, और आप कम से कम 2009-10 का रिवाइज बजट जो है हमें 83,000 करोड़ मिलना चाहिए। रुपया नहीं मिला। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी 532 और जितने ये कई हजार अपने कॉर्पोरेशन के स्कूल है प्राइमरी के, उनमें पिछली बार हमारा एक शिल्पास का अफसर बैठा, हमारे से बात हुई, चिट्ठी पत्री लिखी, उसमें पिछले साल से प्राइमरी का स्कॉलरशिप देना किया है शुरू, इससे पहले था ही नहीं। सारा समाज सारा सो रहा है, सारी दुनिया सो रही है, कोई नहीं चिंता कर रहा है कि भाई बच्चे को मिला। और जो 6ठी को और 7वीं को मिलता है, पता कितने रुपए मिलते हैं? 45 रुपये महीना, एक रजिस्टर आ सकता है, और 10 महीने का मिलेगा, वो भी मिल गया तो। और जो 8वीं 9वीं में मिलेगा वो मिलेगा 75 रुपये महीना, 10 महीने का मिलेगा। और जो इससे ऊपर 11वीं 12वीं का कोई देता ही नहीं, वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले कहते हैं वहाँ से वो मिलेगा, वो नहीं देते। दिल्ली गवर्नमेंट है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनमें मिल जाए, वो नहीं देते, उनको मिलता ही नहीं है। Now we have to call some people who are really seriously want to consider how we need to get the 1,789 crores that is rightfully ours. It is so infuriating. Because not only Delhi, every state this is what they are saying, they are giving this much, but they are not there. They are really humiliating us and our worth. How do we go forward, take this thing forward? Because I don't think even our representatives want to seriously understand and get this money for us.